जो कि कल ही हम लोग ने कंप्लीट किया। किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. If no, then we'll proceed for further. Okay, so let's start with the gynoecium. So as we all know, gynoecium is nothing but the female reproductive part of a flower, right? And it is present. Position of gynoecium is the innermost in position that we have already discussed yesterday. कि जैसे आप flower देखोगे, the most outer part will be your sepals. Then below that your presence of petals. Then below that anthers, and then the gynoecium. So gynoecium is the innermost part of a flower as well it is female reproductive part. Okay, so अभी हम लोग क्या करेंगे, गाइनोशियम में राइट सम पॉइंट्स। आप ऐसे ऐसे करके कुछ पॉइंट्स लिखिए वहां पे। फर्स्ट पॉइंट, gynoecium is the female reproductive part and gynoecium is the female reproductive part and present innermost in position and present innermost in position. ओके, अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल मेंबर है बच्चा लोग ऑफ गाइनोशियम, इट इज कॉल्ड एज नोन एज कार्पेल. ओके, सो राइट नेक्स्ट पॉइंट, individual member of gynoecium sorry, individual member of gynoecium is known as carpel. Is known as carpel. सेम अभी यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने बाकी स्टेमिन्स वगैरह के लिए स्टडी किया है, देयर आर मोर देन वन कार्पेल. सो इफ इट इज दे आर फ्यूज, तो क्या बोलोगे आप उसको? इफ द कार्पेल्स आर फ्यूज, देन आप उसको क्या बोलोगे? सॉरी. So carpel is further divided into two parts. If they are fused, it is called as syncarpus. Yes. और फ्री रहेगा तो आप क्या बोलोगे? Apocarpus. Okay. So if they are fused, it is called as syncarpus, and if they are free, they are called as apocarpus. Syn means fused, carpus stands for carpel, apo means free, carpus stands for carpel. Done? Write it. Done? यहाँ तक हुआ? Yes. Okay. Yes, ma'am. Abhi when more than one carpel is present, this condition is called as polycarpally. Okay. ये हो गया ना, लिख के रुको. When more than one carpel is present, such condition is called as poly. As we know, poly stands for many. Okay. Carpillary. So this condition means there is a presence of more than one carpel. Okay. तो एक लाइन लिखो, when more than one carpel is present, when more than one carpel is present, is called as polycarpally. Polycarpillary. Okay. अब more than one में students सारी की सारी चीजें आते. Okay. Maybe there is two carpels are present. Maybe 3, maybe 4, maybe 5. Correct. So more than one such condition is called as polycarpillary. That is further divided into. अब यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, 3 प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, वैसे. ओके. सो polycarpally, if there is a presence of 2 carpels, it is called as bicarpellary. Presence of 2 carpels is called as bicarpellary. Example is datura. Example is datura. Okay, this is bicarpellary.
Now, when there is the presence of 3 carpels, it is called as tricarpellary. तो नाम से समझ में आ रहा है, ओके? ट्राई मीन्स 3, बाय मीन्स 2. सो ट्राइकार्पेलरी का एग्जांपल है कुकुरबिटा. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज, सॉरी आवाज नहीं है आपके, बच्चा क्या बोल रहे हो? वैसे क्या होता है वो? क्या? ट्राइकार्पेलरी नहीं कुकुर बेटा, वो आपने बताया नाम है बच्चा प्लांट का, जैसे यहाँ पे दतुरा नाम है ना, प्लांट का नाम है कुकुरबिटा. ओके. यस. सो यहाँ पे ट्राइकार्पेलरी. नेक्स्ट इज पेंटाकार्पेलरी. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ 5 कार्पेल्स इज कॉल्ड एज पेंटाकार्पेलरी. सो पेंटाकार्पेलरी का एग्जांपल है आप लोगों का हिबिस्कस. सिंपल था. यस. यस. Okay, so gynoecium ka each member is called as carpel. When it is present more than one, that condition is called as polycarpellary. Bicarpellary means there is a presence of 2 carpels, example datura. Tricarpellary, presence of 3 carpels, example is cucurbita. Presence of 5 carpels, example is hibiscus. Now when the carpels are in a fused condition, it is called as syncarpus. When they are in a free condition, it is called as apocarpus. Clear? Yes ma'am. Okay. Now as we know, carpel का structure we already know, right? आपका सबसे ऊपर अपर मोस्ट क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज योर स्टिग्मा विच इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स. ओके, देन यहाँ से आपका आता है स्टाइल, देन योर बल्जी पार्ट विच इज कॉल्ड एज ओवरी. करेक्ट. अब ओवरी के अंदर ना स्टूडेंट्स ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस ओवरी के अंदर आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. डू यू नो ओव्यूल्स का फर्दर जाके मतलब जब ये रिप्रोडक्शन होने के बाद ओव्यूल्स डेवलप इनटू व्हाट? पता है आप लोगों को? Seeds. Yes, ovules develop into a seeds and ovary develops into a fruit. Yes, very good. Okay, so now we'll see the arrangement. Okay, ये जो ovules जो आगे जाके seeds बनते हैं ना, इसका ovules का arrangement देखेंगे इस placenta के अंदर. Okay, so this is called as placentation. The mode of arrangement of ovules in the placenta, ovary के अंदर, this is called as placentation. Clear है? तो ये सब हो गया, रफ करूं. सो यहाँ पे हमारा गाइनोशियम पोर्शन इज कंप्लीटेड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटेशन. यहाँ पे हमारा फ्लावर का पार्ट हमने जो स्टार्ट किया था ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंसर्शन ऑफ फ्लावर वल्स एंड फ्लोरल पार्ट्स. इंसर्शन में हमने देखा हाइपोगेनस, पेरीगेनस एंड एपिगेनस. ओके, चलो फटाफट एग्जांपल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हाइपोगेनस का एग्जांपल क्या था? China rose, mustard, brinjal, mango. Yes, China Yes. must build a man. China rose, mustard, brinjal, and then mango. Periganus का example? PPRO. PPRO. Okay, plum, peach, rose. Epiganus का? ECGS. Cucumber, Okay, guava, E for sunflower. Sunflower. yes. Very good. तो सबको सारी चीजें याद है? Okay, very good. So let's start with new. यहाँ पे हमारा जो tree diagram था that is completed. Flower part is completed. Now we'll go to the next topic, that is placentation. So give the heading of now placentation. So placentation में बच्चों लोग एक लाइन डेफिनेशन लिखो आगे. The mode of arrangement of ovules, the mode of arrangement of ovules in ovary, in placenta within the ovary. The mode of arrangement of ovules
in placenta within the ovary is called placentation. Sorry. Done. So the mode of arrangement of ovules in placenta within the ovary. अब ऐसा क्यों लिखा है आपने, जो भी डेफिनेशन लिखा अभी हमने देखा कि आपके ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका प्लासेंटा प्रेजेंट है. ओके, सो प्लासेंटा में आपके जो भी ओव्यूल्स के अरेंजमेंट है इन प्लासेंटा विद इन द ओवरी. मतलब ये प्लासेंटेशन आपका कब हो रहा है, जब आपका प्लासेंटा ओवरी के अंदर है. एट दैट टाइम ओनली दिस प्लासेंटेशन इज बीइंग परफॉर्म. करेक्ट. सो ये जो भी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है वो टाइम पे ही ये प्रॉपर अरेंज होके हो रहा है. समझ में आया? Now placentation is further divided into 5 parts. अभी देखेंगे हम कैसे कैसे हो रहा है अरेंजमेंट. दिख रहा है? विजिबल है ना सबको इधर? So first one is marginal. So marginal में स्टूडेंट्स कैसा होता है? आप लोगों ने पीस देखा है? पीस, मटर ग्रीन. सो वहां पे आप देखते हो तो देखो जो ओव्यूल्स है दैट इज फर्दर डेवलप्ड इनटू अ सीड्स. करेक्ट. तो वो कैसे होते? दे आर लाइक दिस, मार्जिनल फॉर्म में प्रेजेंट है सारे के सारे सीड्स. सो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज मार्जिनल. तो यहाँ पे जो आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है ना, वो सारे का सारे एक मार्जिन बना रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल. ये बहुत इजी है. प्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ ये याद रखना और इसका एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट. सो मार्जिनल लिखो, ड्राइंग करो, देन एग्जाम्पल लिखो PNB. इसको आप शॉर्टकट में ना PBM भी बोल सकते हो. PBM, P being marginal. Okay, PBM. Next is your exile. एक्साइल का मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ स्टूडेंट्स. एक्साइल करके जो होता है ना यहाँ पे प्लेसेंटेशन, वो जो नॉर्मली सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है. जैसे कि टोमेटो हो गया आपका, लेमन हो गया, ओके, चाइना रोज वगैरह हो गया. तो फ्रूट्स में आपको एक्साइल में आप टोमेटो और लेमन याद रखोगे तो वो भी दैट इज वेरी इजी. ओके, तो एक्साइल में लिखो. एक एक चीज और मेंशन करते चलो. यहाँ पे मार्जिनल में ना नीचे लिखो यूनी मतलब 1 लोक्यूलर ओवरी. यूनिलोक्यूलर ओवरी मतलब एक ही यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है जिसमें सारे के सारे ओव्यूल्स आपके मार्जिनल फॉर्मेट में प्रेजेंट है. एक्साइल में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओवरी कैसा, इट इज मल्टी लोक्यूलर. ओके, सो यहाँ पे इट इज मल्टी लोक्यूलर इन एक्साइल. एग्जाम्पल में आप इसका टोमेटो और लेमन याद रखोगे सबसे बेटर है. चाइना रोज भी एक याद रख लो. ओके, नॉर्मली ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, जो भी चीजें खट्टी होती है वैसे. सो इट इज लाइक दिस. ऐसे बना सकते हैं, फिर इसका टिल्ट करके उल्टा भी. ओके, डन. नेक्स्ट इज पैराइटल. इसका ना आप ACC भी शॉर्टकट याद रख सकते हो. टोमेटो लेमन तो आपके लिए आपके बुक के हिसाब से एक्साइल ACC, चाइना रोज, C से चाइना रोज, देन C से कॉटन. सो एक्साइल, चाइना रोज एंड कॉटन. या फिर इसका पैसे ATLC, एक्साइल, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज. समझ में आया? ATLC भी याद रखोगे तो भी ठीक है, ACC भी याद रखोगे तो भी ठीक है. सारे एक्साइल के ही एग्जाम्पल्स हैं. ATLC, A फॉर एक्साइल, T फॉर टोमेटो, L फॉर लेमन, C फॉर चाइना रोज. समझ में आया? या फिर एक्साइल से चाइना रोज एंड कॉटन दोनों भी चलेगा. नेक्स्ट इज योर पैराइटल. पैराइटल में भी आपकी ओवरी कैसी, दैट इज यूनिलोक्यूलर. सिर्फ इतना याद रखो ओवरी का.
पराइटल में भी क्या है आपका, यूनिलॉक्यूलर है, ओवरी। ओके, पराइटल में एग्जाम्पल इज पीपीसी, पपाया एंड कुकुम्बर, या फिर आप यहाँ पे पैम भी याद रख सकते हो। पैम मतलब पी से आपका पराइटल आ गया, नहीं सॉरी, पपाया एंड कुकुम्बर, पीपीसी। पी फॉर पराइटल, पी से पपाया एंड सी से कुकुम्बर। ओके, नेक्स्ट इज योर बेसल। अब यहाँ पे आपका पराइटल में भी इट इज लाइक दिस, यहाँ पे आपका ओवरी, ये जो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल्स, ठीक है। ये आपका जो बाकी का पोर्शन है दैट इज योर प्लासेंटा, जैसे अभी हम लोगों ने मार्जिनल में देखा है ना, सो ये आपका प्लासेंटा और उसमें ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब लाइक दिस, ये कैसा है, ऐसा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल्स टाइप का आपका। ओके, पराइटल का एग्जाम्पल हो गया, दैट इज पीपीसी, पपाया एंड कुकुम्बर। नेक्स्ट इज बेसल। बेसल में भी सेम आपका यूनिलॉक्यूलर ओवरी है। बेसल का बीएमएस याद रख सकते हो। यहाँ पे पहले बेसल का भी यूनिलॉक्यूलर ओवरी, ठीक है। एग्जाम्पल में यू कैन रिमेम्बर बी एम एस, बी से बेसल, एम से मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। ओके, बी एम एस, बी फॉर बेसल, एम से मैरीगोल्ड, एस फॉर सनफ्लावर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, the last one is free central. लास्ट में आपका आता है फ्री सेंट्रल। ओके, फ्री सेंट्रल में कैसा, इट इज लाइक दिस, यहाँ पे एक आपका इनर प्रेजेंट, देन दिस इज लाइक दिस इज योर फ्री सेंट्रल। ओके, आप लोग को तो एग्जाम्पल नहीं दिया, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देती हूँ, दैट इज एफडीपी, आप याद रख सकते हो, डायंथस एंड प्राइमरोज। सो इसका एग्जाम्पल इज एफ डी पी। एफ से फ्री सेंट्रल, डी से डायंथस एंड प्राइमरोज, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डायंथस, पी फॉर प्राइमरोज। समझ में आया सबको? तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था, दैट इज डिवाइडेड इनटू मार्जिनल। एग्जांपल इज पी बीन, पीबीएम आप याद रख सकते हो, पी फॉर पी बीन एंड एम फॉर मार्जिनल। एक्साइल में एटीएलसी भी याद रख सकते हो, ए से एक्साइल, टी से टोमेटो लेमन, सी से चाइना रोज, या फिर कॉटन, एसीसी भी याद रख सकते हो। पराइटल में पीपीसी, पी फॉर पराइटल, पपाया एंड कुकुम्बर, पीसी। बेसल से यू कैन रिमेम्बर बीएमएस, बी से बेसल, एम से आप लोगों का, एस से सनफ्लावर, एम से मैरीगोल्ड। ओके, फ्री सेंट्रल में एफडीपी, डायंथस एंड प्राइमरोज। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके, यहाँ पे प्लासेंटेशन हमारा खत्म। रफ करूँ, हो गया सबका लिख के? एवरीवन डन राइटिंग? Yes, ma'am. Okay. So next is fruit. Okay. Next part is fruit. ओके, अभी हम लोग फ्रूट के बारे में स्टडी करेंगे।
So fruit is further divided into, फ्रूट में भी अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स होते हैं, लाइक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होता है, ओके, देन फॉल्स फ्रूट भी होता है, ट्रू फ्रूट भी होता है, तो वैसे अभी हम लोग देखेंगे. So fruit is divided into first one is parthenocarpic fruit. लिखते चलो, फिर हम लोग एक एक का स्टडी करेंगे. ओके, देन simple fruit, aggregate fruit, and then last is composite fruit. लिख लिए स्टूडेंट्स इतना? Yes, ma'am. ओके, अभी इसमें हम देखते जाएंगे कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते जाएंगे. ओके, so fruit is further divided into parthenocarpic fruit, simple fruit, aggregate fruit, and composite fruit. Okay, so in that the first one is parthenocarpic fruit. So first we'll study कि parthenocarpic fruit क्या होता है. ओके, पार्थिनोजेनेसिस मतलब पता है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस फ्रूट. हमको पता है कि फ्रूट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, करेक्ट? सो इन Yes. सम प्लांट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. ओके, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी. अभी मैंने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस? क्या होता है? अभी किसी ने बोला था ना, यस, पता है आपको? टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस? Ma'am, without fertilization, only the new one are grown. That is parthenogenesis process. न्यू वन मीन्स व्हाट बच्चा? Fully grown adults are formed without fertilization. Means the process in which fully grown an organism is made without from a single Exactly. cell. Yes, so this is the difference between the parthenogenesis and parthenocarpy. Both are correct. Okay, जिसने भी दोनों जन भी right हो. So difference मैं आपको यही बताना चाहती थी कि parthenogenesis is the organism. Okay, it is in terms of organism that is formed without fertilization. And what do you mean by parthenocarpic? It is the formation of fruit without fertilization. So there is the basic difference between these two. So do not get confused between these two. Clear? तो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये. चलो, वेरी गुड, यू ऑल नो ऑल दैट थिंग्स. ओके, सो पार्थिनोकार्पी में चलो लिखो अभी एक लाइन. द एंजियोस्पर्म्स दैट प्रोड्यूस फ्रूट, द एंजियोस्पर्म्स दैट प्रोड्यूस फ्रूट without fertilization is called parthenocarpy. Is called parthenocarpy, and such fruits are called as parthenocarpic fruits. Done? Example, banana and grapes. Example, banana and grapes. Done? अब वहां पे एक सेंटेंस लिख के ऐसे लिखो. Fruit is again now divided into two parts. One is called as true fruit and the another one is called as false fruit. What do you mean by true fruit? So true fruit means the fruit which develops only from ovum.
ovary. Okay, ऐसा fruit that develops only from ovary is called as true fruit. Getting my point? An example you can write it mango. आप इसको नीचे भी ऐसे भी टिल्ट करके लिख सकते हो. False fruit means what, students? The fruit which develops from ovary as well as another part. जैसे कि एप्पल देखा है सब लोगों ने, थैलेमस समझते हो. तो false fruit means ओवरी के साथ तो वो ग्रो हो ही रहा है, प्लस बाकी के अदर पार्ट्स भी, जैसे कि एप्पल में थैलेमस इज आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. ओके, सो हम लोग जो ईट करते हैं ना बल्गी पार्ट, दैट इज थैलेमस, एप्पल का जो हम लोग ईट करते हैं, जो हम लोग खाते हैं. ओके, सो द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी प्लस other floral part is called as false fruit. Example is apple. समझ में आया? So in fruit also there are two types. True fruit means that develops from the ovary. Example is mango. False fruit means ovary से develop तो हो ही रहा है, but also some other floral part. So example is apple. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. So next we'll move towards the simple fruits. Rough करूँ students? Done writing this? Yes, ma'am. Okay. So next is simple fruits. Okay. So what do you mean by now simple fruit? So the fruits can develop from one ovary of one flower is called as simple fruit. Normally one ovary है, एक फ्लावर के अंदर आपका एक गाइनोशियम है, उसके अंदर एक आपको ओवरी है, सो वहां से जो फ्रूट डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रूट्स. तो चलिए लिखिए यहाँ पे सिंपल फ्रूट में द फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम one ovary of one flower. Underline it. Okay, one ovary of one flower. एक ओवरी एक फ्लावर. डन. अभी नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प. आप लोगों को लेयर्स पता है फ्रूट्स के? पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प होता है, 3 लेयर्स होते हैं फ्रूट के. Yes. Okay, so on the basis of pericarp, this simple fruit is again divided into 2 type of fruits. Okay, अब जिसमें वो जो आपका पेरिकार्प जो आउटर कवरिंग है ना, किसी किसी में that is very thin and dry, so such fruits are called as dry fruits. अब किसी किसी में it is very fresh, मतलब thick है, so thick है, so it is called as fleshy fruits. तो लिखिए ऐसा सिंपल फ्रूट आप चाहिए तो ना यहाँ पे मेंशन कर दो ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प लिख सकते हो. on the basis of pericarp is again divided into dry fruits and fleshy fruits. ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही थिन और ड्राई है वो. ओके, आपका जो पेरिकार्प्स है, और जो फ्लैशी है उसमें बल्गी और ईटेबल टाइप का है. चलो अभी ड्राई फ्रूट में एग्जांपल लिख लो. मिराबिलिस एंड मेज. ड्राई फ्रूट्स का डायरेक्ट एग्जांपल लिख लो. मिराबिलिस एंड मेज. फ्लैशी फ्रूट्स में टोमेटो एंड कोकोनट यू कैन राइट इट. फ्लैशी में भी देखो एक ड्रूप फ्रूट भी होता है. हाँ, ये चीज याद रखना. फ्लैशी इज अगेन डिवाइडेड. आपका जो फ्लैशी फ्रूट है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
एक होता है बेरी टाइप फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है एंड अनदर वन इज ड्रूप. ड्रूप वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ड्रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद रखिएगा एग्जाम्पल भी. सो बेरी में आपका एग्जाम्पल आ जाता है टोमेटो एंड इन दिस इज कोकोनट. समझा सबको? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So on the basis of pericarp, it can be thin, it can be thick. When it is thin, it is called as dry fruits. Example is mirabilis and maize. And when it is thick and fleshy, such fruits are called fleshy fruits, which is further divided into two types. The fruit can be a berry type also and can be a drupe type. So berry type hoga, so example is tomato, and drupe is example is coconut. Till here done everyone, सबका हो गया लिख के. नेक्स्ट इज एग्रीगेट फूड. एग्रीगेट फूड में लिखो, अभी यहाँ पे एक फ्रूट ना आपका मोर देन वन ओवरीज से बन रहा है. ओके, अब वो भी कैसे टाइप के ओवरीज? एपोकार्पस. एपोकार्पस मीन्स व्हाट बच्चा लोग? एपो मीन्स फ्री, कार्पस मीन्स कार्पल. कार्पस मीन्स कार्पेल. ओके, सो यहाँ पे जो एपोकार्पस आपके जो फ्री कार्पेल है, वहां की मेनी ओवरीज को मिला के जो आपका सच फ्रूट बन रहा है, दिस फ्रूट इज कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट. एग्रीगेट वर्ड का मतलब ही देखो, इकट्ठा. एग्रीगेट मीन्स व्हाट? सारी चीजों को मिलाकर, राइट? सो एग्रीगेट फूड इज मेनी ओवरीज कंस्टिट्यूटिंग वन फ्रूट. समझ में आया? चलो एग्रीगेट फ्रूट का डेफिनेशन लिखो नीचे. व्हेन many ovaries when many ovaries of apocarpus gynoecium, underline कर लेना. Many ovaries of apocarpus gynoecium form one fruit, such fruits are called as aggregate fruits. Such fruits are called as aggregate fruits. Done? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो एग्रीगेट फ्रूट्स मतलब क्या होता है? मोर देन वन ओवरीज. अब कैसे टाइप का गाइनोशियम? एपोकार्पस टाइप का गाइनोशियम कंस्टिट्यूट कर रहा है वन फ्रूट. ओके, सो सिंपल फ्रूट में वन ओवरी वन फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट में मोर देन वन ओवरी कंस्टिट्यूट टू वन फ्रूट. समझ में आ रहा है? So Yes, ma'am. basically your aggregate fruits are a collection. Okay, this collection word is called as itario. Okay, this collection word को क्या बोला जाता है? itario of many varieties. So अभी हम लोग aggregate fruit में अलग अलग टाइप का कलेक्शन देखेंगे, that is itario of acnes. एग्जाम्पल देखेंगे, फिर berries, फिर follicles. Okay, so this aggregate fruit it's further divided into okay. So first one is इटारियो ऑफ एक्नीज. इटारियो वर्ड का मतलब समझ गया ना सबको? इटारियो वर्ड है मतलब कलेक्शन. ओके, तो आप इटारियो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्टली लिख लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया है कि इटारियो क्या होता है. ओके, सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ कलेक्शन ऑफ एक्नीज, जिसमें हम एग्जांपल लिखेंगे. देन अगेन इटारियो, दैट इज द कलेक्शन ऑफ बेरीज. BERRIES. क्लियर नहीं है क्या? And the next one is follicles. Okay, अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम. दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्नीज का एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉबेरी. बेरीज में योर एग्जाम्पल इज कस्टर्ड एप्पल. And follicles में your example is calotropis.
हेलो मिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस हेलो बच्चा मिस। बोलो। मिस बेरीज मतलब वो खाने वाला बेरीज ना? यस, खाने वाला बेरीज। ओके, सो आपका जो एग्रीगेट यस। फ्रूट्स है, यहाँ पे बहुत सारा वेराइटीज है, दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्नीज, जिसमें एग्जांपल इज स्ट्रॉबेरी, collection of berries, that is example is custard apple, collection of follicles, that is example of calotropis. till here done everyone? सबको समझ में आया? यस। Yes, ma'am. Okay, now the last one is composite fruit. So composite fruit में बच्चा लोग क्या होता है, यहाँ पे many ovaries of many flowers. Okay, डिफरेंस समझते चलो। सिंपल फ्रूट में क्या था, वन फ्लावर वन ओवरी। एग्रीगेट फ्रूट में क्या था, मोर देन वन ओवरी बट वन फ्लावर। कंपोजिट में क्या है, यहाँ पे मेनी ओवरीज फ्रॉम मेनी फ्लावर्स। समझा? मोर देन वन ओवरी, मोर देन वन फ्लावर। ओके, बट सेम इन्फ्लोरेसेंस। इसके पहले जैसे पोलिनेशन आप लोगों ने आई गेस पढ़ा होगा, वो जीनोगैमी, ऑटोनोगैमी, वो सब पता है आप लोगों को? से यस और नो? अगर पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। तो कंपोसाइट फ्रूट में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे वन ओवरी वन फ्लावर, यहाँ पे मोर देन, मतलब मोर देन वन ओवरी बट सेम फ्लावर, यहाँ पे मोर देन वन फ्लावर एंड मोर देन वन ओवरी बट सेम इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस याद है ना, गुच्छा पूरा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था। Yes, ma'am. दिस इज, जैसे यहाँ पे आपका फ्लावर है, दिस आर योर बर्ड्स, तो ये सेम इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, सो यहाँ पे मेनी ओवरीज मेनी फ्लावर्स मिला के क्या बन रहा है आपका, एक फ्रूट। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट। समझ में आया? सो दिस इज योर इन्फ्लोरेसेंस। जैसे यहाँ पे आपका और है, सो यहाँ पे दो तीन फ्लावर आपके सेम इन्फ्लोरेसेंस का मिला के एक फ्रूट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट। गेटिंग माय पॉइंट? इज Yes, इट क्लियर ma'am. टू एवरीवन? ओके, चलो राइट। अभी लिखो यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट में, when many ovaries when many ovaries of many flowers when many ovaries of many flowers constitute a fruit, but from one inflorescence ऐसे भी लिख सकते हो आप, when many ovaries of many flowers but one inflorescence constitute a fruit, या फिर form a fruit. सो कंपोसाइट में क्या लिखना है आपको, कंपोसाइट में मेनी ओवरीज मेनी फ्लावर्स बट वन इन्फ्लोरेसेंस। समझ में आया? मोर देन वन ओवरीज मोर देन वन फ्लावर बट वन इन्फ्लोरेसेंस, एक ही इन्फ्लोरेसेंस का मोर देन वन ओवरी मोर देन one flower constitute a fruit. Such fruit are called as composite fruits. Then writing, many ovaries of many flowers but one inflorescence form a fruit which is called as composite fruits. Which is called as composite fruit. Done? Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं, एक दो चीज याद रखनी है। अब इन्फ्लोरेसेंस में भी ना स्टूडेंट्स लोग, देयर आर सम टाइप्स। ओके, सो कंपोजिट फ्रूट का यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके लिख रही हूँ। ओके, सो कंपोजिट का अभी जो हमने फैमिली देखा ना, तो वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस में भी टाइप है, तो आप इन्फ्लोरेसेंस का एक दो टाइप लिख सकते हो, दैट इज हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ओके, दिस इज हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। जिसका एग्जाम्पल है
साइकोनस, and the another one is catkin inflorescence. Okay, catkin inflorescence. Example is pineapple. अभी आपको इसमें कुछ डिटेल स्टडी नहीं करनी है, इतना ही सिर्फ करना है. ओके, सिर्फ ये रिमेम्बर रखना है, याद रखना है ये कि हैपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल इज साइकोनस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल इज पाइनएप्पल. दैट्स इट. डन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सीड. यहाँ पे हमारा फ्रूट खत्म हो गया. We are done with fruit. So basically fruit is divided into parthenocarpic fruit without fertilization, simple fruit, one flower, one ovary, aggregate fruit, more than one ovary but one flower, composite fruit, more than one flower, more than one ovary but only one inflorescence. Okay, समझ में आ गया ना सबको? Now the next one is seed. हेडिंग तो अभी आप लोग सीड. चलो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे. सीड है क्या? बेसिकली लिखो, सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. Seed is a reproductive unit that develop from fertilized mature ovule. That developed from fertilized mature ovule. Done? अब आपका seed is made up of seed coat and cotyledon, right? So next point लिखो, seed is made up of seed coat and cotyledon. Seed coat and cotyledons. Okay. अब आपका स्टूडेंट सीड में भी सीड कोट एंड कॉटिलेडॉन जो है, सीड कोट में भी दो होते हैं. ओके, एक होता है आउटर लेयर एंड द अनदर वन इज इनर लेयर. ओके, सीड कोट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, outer layer and inner layer. So outer layer is called as testa and the inner layer is called as tegmen. Okay, seed coat में भी दो लेयर होते हैं, outer is testa and the inner one is tegmen. Done? Yes. समझ में आया यहाँ तक? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाइलम. अंडरलाइन कर लो इसे. आप जब मैंगो खाते हो तो जो सीड बचता है, यहाँ पे आप देखते हो ना थोड़ा सा स्कार टाइप प्रेजेंट होता है, जहाँ से Yes. आपका अपर वाला फ्लैशी लेयर जो आप ईट करते हो, जो खाते हो, वो अटैच्ड होता है. सो दिस स्कार इज कॉल्ड एज हाइलम. मतलब एक दाग रह जाता है, निशान, दैट इज कॉल्ड एज स्कार. ओके, SCR, स्कार. सो दिस स्कार इज कॉल्ड एज हाइलम, जहाँ से ये आपका जो बाहर वाला पोर्शन, इट इज अटैच्ड टू इनर वन. ओके, सो हाइलम इज अ स्कार. हाइलम को अंडरलाइन कर लेना. हाइलम इज अ स्कार ऑन सीड कोट through which seed is attached to the fruit. मैंगो खाते वक्त सबने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी सीजन आ रहा है, मैंगो खाओ और फिर नोटिस करो. ओके, सो हाइलम को अंडरलाइन कर लेना. इट इज अ स्कार प्रेजेंट ऑन सीड कोट, जहां पे आपका सीड इज अटैच्ड टू योर फ्रूट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपका जो एम्ब्रियो है, ओके, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट कहाँ पे होता है? वो विद इन अ सीड कोट. सीड कोट के अंदर आपका क्या होता है? एम्ब्रियो.
So next point लिखो, embryo of a seed enclosed within a seed coat. ओके, डन। नेक्स्ट, अभी जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीड देखा होगा, सो वहां पे कैसा होता है, दिस इज योर सीड, ओके। तो एक जो अपर वाला जो ऊपर जाके शूट सिस्टम में डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। इतना पता है हमको। एंड जो लोअर रूट फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल। पता है हमको कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो दो ऊपर शूट सिस्टम फॉर्म करने वाला दैट इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल, नीचे रूट सिस्टम फॉर्म करने वाला दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल, ओके। तो अभी प्लीम्यूल में जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है बिटवीन द कॉटिलिडॉन एंड प्लीम्यूल, यहाँ पे भी दो प्रेजेंट होते हैं, वन इज एपिकोटाइल एंड द वन अदर वन इज हाइपोकोटाइल। तो जो ऊपर की तरफ जाएगा, एज वी नो एपी मतलब अबव, सो दिस इज एपिकोटाइल एंड बिलो वाला दिस इज योर हाइपोकोटाइल, ओके। सो प्लीम्यूल और कॉटिलिडॉन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। सो वहां पे लिखो, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, द पार्ट ऑफ embryonal axis consists of radical and plumule. Radical and plumule. Okay. Now अभी next point लिखो. The part of embryonal axis between cotyledon and plumule is called epicotyle. And between the cotyledon and radical is called as hypocotyle. समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ राइट नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंडरलाइन इट। एंडोस्पर्म provides nutrition. Endosperm provides nutrition to the developing tissue या फिर to the developing seed. Endosperm provides nutrition to the developing seed. Done? So endosperm providing the nutrition to the developing seed. आपका जब seed develop होता है, at that time जो भी nutrition होता है, it is provided by the endosperm. Okay? Till you are done everyone. So here we are also get completed with the seed part. यहाँ पे हमारा seed part भी complete होता है. Next part is family. Okay? Family पता है ना सबको? Yes. Yes, ma'am. ये order पता है? Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Species, yes. Okay? So here we are talking about this family. ना आपकी फैमिली ना मेरी फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फैमिली. ओके, सो अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे.
सो नेक्स्ट हेडिंग 2 फैमिलीज, ज्यादा नहीं है, खैर आप लोगों को 2 ही फैमिली है, सोलानस एंड फैबासी 2 ही दिया है। ओके, टाइम तो है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेंगे। सो फैमिलीज, डू वन थिंग, डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। थोड़ा सा बीच में स्पेस देके डिवाइड करना, सो दैट सारा इसी में कंटेंट आ जाए। सो फर्स्ट फैमिली इज योर फैबासेई, next one is Solanaceae. So Fabaceae लिखो, then Solanaceae. SOLANACEAE. Done? So अभी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स लिखेंगे हम इस फैमिली के, देन वी विल राइट द एग्जांपल्स। ओके, चलो Fabaceae में लिखो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, the plant is either tree, shrub or herb. Tree, shrub or herb. या तो ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते जाओ। ओके, लीव्स आर, लीव्स कैसे हैं, पिनेटली कंपाउंड है। लीव्स आपके पिनेटली कंपाउंड है और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, inflorescence is racemose type. Inflorescence is racemose type. Next point लिखो, flowers are bisexual and zygomorphic. Flowers are bisexual and zygomorphic. After that, calyx shows imbricate estivation. Calyx show imbricate estivation. Next लिखो, example is pea plant. Example is pea plant. तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या वो देख लो। सो फ्लोरल फॉर्मूला, दिस डिनोट्स जाइगोमॉर्फिक, दिस इज बायसेक्सुअल, ये हम मेल के लिए यूज करते हैं, ये हम फीमेल के लिए। दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट। फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज जाइगोमॉर्फिक, ये मेल, ये फीमेल। सो दिस इज बायसेक्सुअल। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, जहाँ पे आपका यहाँ पे 5 है। ओके,
then corolla that is 1 plus 2 plus 2. एक्चुअली अभी आप ऐसे देख के लो, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे. ओके अभी टाइम भी नहीं है, अभी आपको समझेगा भी नहीं इतना. ओके सो सीड तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ओके सो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा